Let's start. Okay, so listen now. We are on to the last topic, that single entry system. Pay attention. Tell me. Quiet. Tell me guys, is there any separate system like single entry system? No. There is no particular system. One second. अरे आपने શું કહેવાય આવી જાય અરે એક Listen now. Is there any separate system like single entry system? No. What is single entry basically? Whenever you divert from double entry system, whenever you do not follow the rules of double entry system, maybe partially or completely, then it is called single entry system. Okay? अब सिंगल एंट्री के थियरी पार्ट के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसने दो टाइप के अकाउंट्स मेंटेन रखे हुए। कौन से दो टाइप के अकाउंट्स मेंटेन रखे हैं? कैश बैंक और पर्सनल। ये थियोरेटिकल असम्पशन है सर। अब टारगेट क्या है? इतने से डेटा में से हमें उसका प्रॉफिट ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड आउट इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ढूंढने के दो तरीके होते हैं। या तो आप एक्सपेंस इनकम के तरीके से जाओ, जो आप नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में करते हो, ट्रेडिंग पीएनएल बना के, या तो फिर आप कैपिटल की मदद से ढूंढो। दो तरीके हो गए आपके पास। इस केस में जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, तब अगर आपको फाइनल अकाउंट्स के तरीके से पूरा बना के करना है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन मेथड। उसको बोलते हैं कन्वर्जन मेथड। वहां पे आप क्या करते हो? एवरी सिंगल एंट्री यू कन्वर्टेड इनटू अ डबल एंट्री and then you find out the profit or loss via final accounts route. There is another shortcut route by which you can find out the profits, that is called as net worth method. So for smaller businesses this method is also suitable, net worth method. For larger businesses you better go for conversion. Okay? तो आपको अभी conversion नहीं है, मैंने बोला था आपको। अभी आपको क्या है? नेट वर्थ method. नेट वर्थ का मतलब क्या है? ओनर का पैसा, कैपिटल। तो कैपिटल की मदद से we'll try to find out the profits. So for that we need how many capitals? Two capitals. One at the beginning, one at the end. दो कैपिटल्स मिल गए तो उसका डिफरेंस आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, वो ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल एडजस्ट करने के बाद। अब वो दो कैपिटल्स ढूंढने के लिए, कैपिटल्स भी आपके पास नहीं है, तो कैपिटल्स को ढूंढने के लिए आप क्या बनाते? स्टेटमेंट ऑफ affairs. What is statement of affairs? Approximate balance sheet. Balance sheet is accurate value, statement of affairs is approximate value. तो उसके एसेट और लायबिलिटी के अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाल के ट्राई टू फाइंड आउट हिज कैपिटल. वंस यू गेट हिज कैपिटल विल ऑटोमेटिकली गेट हिज प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? So that's what we learned in the last lecture, remember? So problem will consist of two parts, statement of affairs and statement of profit. Statement of affairs and statement of profit. Why do we make statement of affairs? To find out capitals. Why do we make statement of profit? With the help of those capitals, we have to find out the profit. We'll be able to find out the profit. And that profit would be considered as profit before adjustments. What are adjustments again? Unrecorded transactions. अगर कुछ adjustment है तो वो करने के बाद जो final profit मिलेगा, that is net profit at the end of the year, that is during the year, उस साल का final net profit. Okay, so we try to calculate the net profit now. I think 3 problems we did, right? Based on those 3 problems हमने किए हुए हैं already. I want you all to take some number
3 थर्ड सम देखो सब लोग. On 1st April 2016, can you see that, guys? On 1st April 2016-17, Mr. Mukherjee commenced business with a capital of 25,000. Clear cut दिया हुआ है commenced. Commenced मतलब ही started. The first year of the business, right? With a capital of 25,000. During the year 16-17, he withdrew for his personal use goods worth 2,000 and cash worth 3,000. What are this? Drawings. Not adjustment. These are recorded ones. During the year. हो चुके हैं. Adjustment मतलब unrecorded. अभी तक नहीं हुआ. He also gave a personal donation of 500 to Sri Ramakrishna Mission. That is again drawings. He paid life insurance premium of 1,000. That is again drawings. All these have been done during the year. During the year, he received a gift of 5,000 from his friend by check, which he deposited into the bank account of business on 110/16. That is additional capital. On 31st March 17, his position was as under. What is 31st March 17? Last date of the year. तो उसके एसेट और लाइबिलिटी दिए हुए हैं. इस डेटा से क्या ढूंढ पाओगे आप? कैपिटल एट दी एंड ऑफ द ईयर. बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है, एंड ऑफ द ईयर आपको मिल जाएगा. फाइंड आउट द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय हिम आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% per annum on machinery and furniture and 400 as reserve for doubtful debts. What is that? RDD. NRDD. Also prepare a statement of affairs as on 31st March 17. Depreciation to be provided for full year. Also provide interest on capital at the rate of 10% per annum. यहाँ पे ये सब एडजस्टमेंट्स है. आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स है? एक तो डेप्रिसिएशन है, एनआरडीडी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है आपको? किया था हमने फाइनल अकाउंट्स में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया है, बिजनेस इज गोइंग टू पे interest on that capital. Just like you show interest payable on loan, you show interest payable on capital. P&L debit and add to capital. Remember? 12 months का interest on capital और interest on drawings भी किया था. Interest on drawings is like income. Interest on capital is like expense. क्योंकि minimum इतना तो छूट रहा है वो चेक करने के लिए आप रखते हो. Remember? So वो तो adjustment से बाद में करते हैं. पहले statement of affairs बना लो. 2 बनाओगे कि एक? कौन सी वाली बनाओगे? Statement of affairs as on 31st March 17. Statement of affairs on 31st March 17. Single column. Format is exactly like your balance sheet, liabilities and assets. Okay. And right hand side पे you can draw a statement of profit. चलो these few items you can write and keep in all the problems. Capital at the end of the year. इसको closing capital भी आप बोल सकते हो. इसमें आप क्या करोगे? ड्रॉइंग्स क्या करोगे? Add.
drawings during the year. एडिशनल कैपिटल क्या करोगे इसमें से? सब्ट्रैक्ट. सीधे जाते हो तो ऐड. उल्टे जाते हो तो सब्ट्रैक्ट. ओपनिंग कैपिटल क्या करोगे? कैपिटल एट द बिगिनिंग, वो भी subtract, and you get profits before adjustments. On these you do different types of adjustments what are available in the problem. जो भी आपको adjustments दिए हुए हैं, those adjustments you do it, okay? Related to individual problem, with respect to individual problems. Now, let's finish off first the statement of affairs and try to get his capital. Okay? So capital ढूंढ लेते हैं पहले तो. Closing capital, machinery is asset. Copy it down as it is, 20,000. You got furniture, that's 2,000. Stock of goods, that's 5. Debtors are 8. Bank balance is 1,500. Prepaid insurance is 200. Payable to creditors, मतलब creditors, that's 3,000. And liability for expense, that is outstanding expense, that is 700. What is the total now? 22, 27, 35, 36, 700 आ रहा है ये? Hello? So you arrive at your capital, that is, I think 33,000, right? बराबर है. एंड ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 1,416 का. कितने से बिजनेस स्टार्ट हुआ था उसका? 25,000. ओपनिंग कैपिटल के लिए बनाने की जरूरत नहीं थी. ओपनिंग कैपिटल स्ट्रेट आपको दिया हुआ था प्रॉब्लम 25,000, राइट? So only one statement of affairs and your work is done. Got your closing capital. Opening was there in the question. And then you go to the profit part. Just इसको fill up करना है. अभी उल्टे जा रहे हैं. याद है हम उल्टे क्यों जाते हैं यहाँ पे? Why are we going उल्टा? Negative में ना इसके लिए. That is the only reason. Nothing else. ओके सीधे भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है. नेगेटिव में आएगा. आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा. नेगेटिव तो प्रॉफिट, पॉजिटिव है तो लॉस. यहाँ पे सीधे ही जाना, मतलब उल्टे ही जाना. Why do we use space between capital or this? Now we don't have to write drawings and stuff. Nothing, that's okay. Even if you don't leave it, it's fine. Tell me, capital at the end of the year is how much? 33,000. मिला आपको? Hello? Got that? Hello. Then सर 2 पेज में एडजस्टमेंट सब लंबे आएंगे. ये बढ़ जाएगा पूरा. आएगा आगे. है ना नीचे 4 एडजस्टमेंट. डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आरटीडी. कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 33. ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है देखो वहां पे. पहला तो उसका कितना दिया ड्रॉइंग्स पढ़ो. He withdrew for his personal use goods of 2,000 and cash of 3,000. That's one. He also gave personal donation of 500 to Shri Ramakrishna Mission. वो भी ड्रॉइंग से हुआ ना. दिख रहा है आपको? हेलो. He paid life insurance premium of 1,000. So 3 plus 1 4,500 उसका कैश ड्रॉइंग से. और गुड्स में उसने कितना विड्रॉ किया? स्टॉक में 2,000. So total drawings are I think 6,500. Is that right? So we can balance.
you have to show photo. You have to show the breakup. कैश एंड स्टॉक अगर दिया है ना उसका ब्रेकअप दिखा देंगे. कैश और काइंड का ड्रॉइंग्स, कैश एंड स्टॉक, कैश एंड गुड्स. कैश ड्रॉइंग्स आर 4500, गुड्स ड्रॉइंग्स आर 2000. Got that? मिला? उसके बाद क्या है? एडिशनल कैपिटल. कितना है एडिशनल कैपिटल पर? 5000. ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से. ओपनिंग कैपिटल कितना है आपको पता है? यहाँ पे 25,000 था उसका, वो भी सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से. So 9,500. तो ये 39 minus 30, 9,500. दैट्स प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स. प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स आ गया आपके पास. बराबर है? याद आया ये सब? कैपिटल एट द एंड. उल्टे जा रहे हो तो ड्रॉइंग्स माइनस करने के प्लस, माइनस करने के बदले प्लस, एडिशनल कैपिटल प्लस करने के लिए माइनस, ओपनिंग माइनस किया, प्रॉफिट्स मिल गए. क्या इन प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स हुए अब तक? नहीं हुआ, इसलिए तो आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में. बराबर है? तो एडजस्टमेंट्स करते हैं. मुझे बताओ डेप्रिसिएशन ऐड करना है लेस करना है? प्रॉफिट लेस करना. दूसरा इफेक्ट होता है यहाँ पे बट हम लोग दिखाने वाले नहीं. रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होता है. यू डोंट हैव दैट रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. सो यहाँ पे से लेस कर दो. पहला इफेक्ट जो प्रॉफिट वाला होता है, अगर प्रॉफिट को बढ़ाता है तो ऐड करो, प्रॉफिट को घटाता है तो लेस करो. तो डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट यू हैव, आई थिंक मशीनरी एंड फर्नीचर. कितना टका है? तो पहले मशीनरी पे देख लो, इधर ही वर्किंग दिखा देना. मशीनरी कितनी थी? 20,000. पे 10% फॉर फुल ईयर आई थिंक, राइट? दैट्स 2,000. दूसरी वाली फर्नीचर. सो लेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. I think that's furniture is 2,000. Pay 10% for again 12 months. कुछ नहीं दिया है तो that's 200. और NRDD क्या करना है? ऐड की लिस्ट. What does NRDD do? It increases your profits or increases your losses. NRDD क्या करता है? लॉस को बढ़ाता है. एंटिसिपेटेड लॉस. आप लॉस क्रिएट करके नया प्रोविजन बना रहे हो, अब भी लॉस दिखा रहे हो ड्यू टू कंजर्वेटिज्म. ओआरडीडी आपके लॉस को घटाता है, एनआरडीडी आपके लॉस को बढ़ाता है. तो यहां से क्या करोगे? प्लस की माइनस. माइनस. ये भी आपके लॉस, जो भी लॉस को बढ़ा रहा है, प्रॉफिट्स को घटा रहा है, वो सब माइनस. प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा है तो ऐड. तो एफबीडी है वो भी माइनस, एनआरडीडी है वो भी माइनस. तो इधर लिख देने का प्रोविजन फॉर doubtful debts. Yeah, simply you can write NRDD. Simply NRDD भी चलेगा. कितना है वो? आई थिंक अमाउंट दे दिया है ना आपको, 400 रुपीज, राइट? 400 डायरेक्ट दे दिया है. कभी दिया होगा 5% ऑफ डेटर्स, तो ये रहा डेटर्स आपका 8,000 का 5% ले, दैट्स 400. ओके, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट था. और क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या करेगा वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस है. तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम हो जाए. तो यहाँ पर ही लिख दो. लेस के अंदर ही लिखना है सब कुछ. ऐड कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अच्छा हमने एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कितने महीने का कैलकुलेट करते हो? फुल ईयर क्या करते हो, राइट? कौन से वाले कैपिटल पे करोगे? 25,000 वाले पे करोगे कि 33,000 वाले? 25,000 opening capital. Obviously opening capital because that was there since the beginning till the end of the year. 33 तो लास्ट डेट वाला कैपिटल. आप सम्स याद करो फाइनल अकाउंट्स. आउटर कॉलम वाले कैपिटल पे करते थे कि इनर कॉलम वाले कैपिटल? इनर कॉलम वाला. बिगिनिंग वाला कैपिटल पे करते थे, राइट? सो बिगिनिंग वाला कैपिटल कितना है आपका? 25,000. अच्छा, सम में देखो और कोई एडिशनल कैपिटल है क्या? 5,000 है. कब इंट्रोड्यूस हुआ है? डेट दी है 110 को इंट्रोड्यूस हुआ है. उसमें भी आएगा ना इंटरेस्ट 6 महीने. तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल का डेट दिया हुआ है. व्हाट इफ द डेट वुडंट हैव बीन गिवन? नहीं, सपोज एडिशनल कैपिटल का डेट प्रोवाइड नहीं किया होता तो इग्नोर ही कर देने का. तो लेने की जरूरत, तो अज्यूम करने का एडिशनल कैपिटल लास्ट डेट पे है. क्या अज्यूम करने का? एडिशनल कैपिटल लास्ट.
तो चुपचाप वैल्यू ओपनिंग कैपिटल फिनिश गॉट इट। क्योंकि एडिशनल कैपिटल का डेट दिया हुआ है, व्हाट इज द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल 110। डेट नहीं है तो क्या अज्यूम करने का, लास्ट। लॉजिक नहीं बनता ना फर्स्ट डेट पे अज्यूम करके, पहला ही दिन डाला वापस पहले दिन डाला, डजंट मेक सेंस। एक साथ ही डाल देगा ना पूरा पैसा। तो एडिशनल कैपिटल का अगर डेट नहीं दिया है तो अज्यूम इट इज द लास्ट, उसमें लेने की जरूरत नहीं, इग्नोर इट। बट यहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दो पार्ट्स में करना है, एक 25,000 पे और एक 5,000। 25,000 पे कितना आएगा, 25,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 12। दिस वाज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, दैट्स 2,500। एंड 5,000 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। एक सेकेंड ना, ये 250 आएगा, इज दैट राइट? अब खींच लो बाहर 5350, ये ब्रैकेट में डाल देना क्योंकि माइनस करना है। 9500 माइनस 5350 गिव यू 4150, इज दैट राइट? That's your net profit during the year. Yes, lock it. Why do we have to assume last date? For additional capital, if no date is given, क्योंकि लास्ट डेट पे क्या करते हो, next year काम है। तो लास्ट डेट पे क्यों करते Assumption क्यों करते हैं? क्योंकि अगर फर्स्ट डेट पे अज्यूम कर रहे हो तो 25 के साथ ही डाल देता ना। हो? बट मिड इसमें कर सकते हैं ना, 6 मंथ्स का मिडल अज्यूम्पशन नहीं, वैसा नहीं। डेट नहीं दिया है ना तो फिर या तो फर्स्ट डेट या तो लास्ट डेट, मिड डेट का अजम्पशन नहीं रहता। But it would be logical if it is. बट यू डोंट नो, कभी भी आ सकता है, 3 महीना 4 महीना ये आगे नहीं है। 6 महीना, सॉरी ये आगे नहीं है ना, ये आगे इन द सेंस सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स वगैरह अगर करोगे हायर स्टैंडर्ड्स में तो वापस आएगा सिंगल एंट्रीज। जब कन्वर्जन मेथड पढ़ोगे वहां पर भी ये कंसेप्ट आता है। बट या तो फर्स्ट डेट या तो लास्ट, मिड डेट है कभी कोई चीज का अजम्पशन नहीं रहता कभी। प्रैक्टिकली तुमको डेट मालूम है तो उतना डेट का करो, इंटरेस्ट थियरी में या तो फर्स्ट या तो लास्ट। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का लेते हैं ना 6 महीने। इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स क्यों 6 महीना लेते हो? ड्रॉइंग्स बीच में नहीं निकाला, उसमें पूरा साल में थोड़ा 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 निकाला, इसके लिए एवरेज आउट। मैं बोल रहा हूँ, आप बोले कुछ नहीं आता। अरे ड्रॉइंग्स ऐसा नहीं है कि वो तू 110 को अज्यूम कर रहा है, निकाल रहा है, इसके लिए 6 महीना नहीं है, पूरा साल में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके लिए तू अभी लोन लिया है तो 1 लाख का लोन लिया है,